Very good afternoon. In previous lectures, we have discussed some contents related to energy audits, and now this slides you can see over here. Uh, there are three best practices are such as follows: is energy management standards, tools, as well as energy audit. Energy management standards is all about the standards which are decided by the higher authority and in which all the guidelines would be there around which all the actions would be performed in the way to achieve uh, a standard platform and if any management survive a very healthy environment then that type of standard will be as energy management standards. Now the next one is tools. Various type of tools work there in the way to establish the standards in the business management. And if we talk about the 5S management, then this methodology is related to the all those standards on the behalf of any system can be arranged in a definite way, and that would be and in that thing the standard point is also mentioned on the behalf of which the all things would be a standard, and if the things would be standards then definitely there would be no confusion. So right now, here you can see the best practices. In the best practices, there are the following points. First one is energy management standards, then tools, then energy audits. Now, what is the energy management standards? Now, actually, if we talk about the energy management standards, then we know that the energy management standards are belonging to that type of standards which would be fulfilled by the managements in the way to establish all the platforms which would be laid for the all type of activity whatever they are done or not done. So if we talk about the energy management standards, then various type of international standard organization for the systems are designed. But in those standards, we will talk about the ISO 5001. And here you can see in the slides. Here the logo is over here, ISO 5001, and there is a symbol of ISO. And this ISO 5001, I think this is 50,001 is over here. So this is not 5,001, this is 50,001. And the ISO 50,001 is all about the energy management standards. Energy management standard, that is EMS. Okay. Now, ISO 50,001 is based on the management system model of continual improvement. So, what is the main point in ISO 50,001? Actually, this is very clear. This is very clear. The thing is that if we are talking about the ISO 50,001, then the 50,001 is related to all the contents which would be carried out under such type of umbrella, and that umbrella would be related to the energy management standards. So all the things would be related to the energy management, and if we are talking about the management, then the management manages all the things, and after managing all the things, any organizations would be feasible for its function
if any organization operates its function in a very positive way, then the management would be responsible for all type of activity. And this is decision of management, that the management is creating a healthy environment or not healthy environment. So if I am talking about the energy management standards, so all the things would be from the management. Now, the ISO 50001 is based on the management system model of the continual improvement. It means in ISO 50001, uh, we have a knowledge regarding the implementation of such type of ISO certification. And definitely it is very clear to all that the ISO 50001 have some basic points on the behalf of any organization can recognize with or certify with this certification, that is ISO 50001. So various type of policies would be there, but there is the main concern of ISO 50001, and that is to do something else in the way to establish a developed environment, as well as for to achieve a continual improvement. Improvement continually करना है, तो ISO 50001 is best for any energy management system. और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में एनर्जी मैनेज होगी 50001 ISO 50001 के अंडर में। सो ये सर्टिफिकेशन पाने के लिए कई पॉइंट्स पे फुलफिल होना पड़ेगा, जैसे कि LEED में आप कई सारे क्राइटेरिया देखे थे, वैसे भी ISO 50001 में कई सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे ट्रेनिंग, लेबरेशन और वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटिफिकेशन, सर्वे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके बिहाफ पे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम को एक एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मिलेगा, और वो एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का 50001 वर्जन। So, this international standard makes it easier for organization to integrate energy management into their overall effort to improve quality as well as environmental management. Now, you can see over here, we are talking about the improvement of the quality as well as environmental management. So, if you have to maintain the quality of the managements, if you have to maintain the environmental aspect from the managements for the any organization, then definitely you have to do a lot of effort. But uh, if any effort would be in a confined way, and if any effort would be in a confined way, as well as the effort would be subjected in a such a way that the very effective results would be a fruitful form from the all the input works, then this would be possible if and only when any type of international standard organization would be there. If any type of organization is certified with ISO 50001, then definitely the whole things would be for a continual improvement, as well as any type of international standard organization makes it easier for the organization, जिससे कि क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि इंटीग्रेट हो एनर्जी मैनेजमेंट, इंटीग्रेट कर सके एनर्जी मैनेजमेंट को किसमें, इनटू देयर ओवरऑल एफर्ट्स, उनके ओवरऑल एफर्ट्स में किस पर्पस के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एज वेल एज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। इट मीन्स if we are talking about the quality improvement, then definitely we will have to think about the innovations, technologies, which type of innovations and which type of technologies are involving in the that type of set organization. If if there is no innovativeness, then there would be no continual improvement. So if we are talking about the quality, that is degree of fitness, so we have to adopt some type of international standard organization, and
And here you can see that ISO 50001 is the energy management standards, and if any organization is certified with ISO 50001, then definitely that organization is very that organization would be capable to uh, do some works for a continual improvement, and the such type of standards makes for any organization for the purpose to make the integration of energy management into their overall effort to improve quality as well as environmental management. Now, now the second point is over here that we are talking about the ISO 50001 2011 version. So, if we talk about the 2001-11 version, here you can see actually ISO 50001 2011 version provides a framework of requirements for our organization. For which purpose यहाँ पे देखते हैं ISO 50001 2011 की अगर हम बात करते हैं तो ISO 50001 2011 एक्चुअली में क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. What does ISO 50001 2011 provides? ISO 50001 2011 provides a framework of requirement for organization. ठीक है, ISO 50001 2011 एक फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स का प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं. There are some following points such as if we talk about the first point, that is the first point is here, develop a policy for more efficient use of energy. Now the first point for the ISO 50001 colon 2011 is over here that we have to develop a policy for more efficient use of energy. क्योंकि अगर हम एनर्जी का जो है एफिशिएंटली यूज़ कर लेंगे और ऐसी कोई पॉलिसी यूज हो, ऐसी कोई पॉलिसी वहाँ पे डेवलप हो, तो उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि वहाँ पे किस टाइप का रिक्वायरमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एक एफिशिएंट वे में एनर्जी का यूज हो, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो और एनर्जी सेव भी हो. तो ये सारी चीज़ें. Now the second point is related to the fixation of targets and objectives. Targets and objectives की अगर हम बात करें तो actually if we are talking about the objective, then the objective is very short term. Objective is very short term. Suppose that एक महीने के लिए हमको कुछ objective सेट करना है और कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने हैं 10 साल 20 साल के लिए, तो वो सारे फिक्स होने चाहिए और वो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स होते हैं वो पॉलिसी को मैच भी करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी एक्चुअली में है क्या, और हमारी पॉलिसी क्या है एक्चुअली में एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी है. ठीक है, देन फॉर द ISO 50001 2011 version. Now the third point, if we look for the point number 3, then the point number 3 says use data to better understand and make decisions about the energy use. You know very well that the numerical facts are very important for a statistical approach. On the behalf of statistical approach, you can see that the situation is within the control or not. If the situation is within the control, then the whole thing is very fine, and you have no need to worry about the future, because all things are lying below the control limits. But the data are given in such a way that the data after the calculation we get that the energy use are over control, then definitely there is a very risky task. So we have to collect the data, and on the behalf of data, we can understand that is we are using an energy saving process or not. So on the behalf of data, that those data would be very helpful for us
to make a better understanding and for make a better decision about the energy use. Now, after the using data and after the fixation of targets as well as objective, after the development of the policy, we have to go for the fourth number point, that is measure the results. Definitely, this is very obvious. If we measure the results, then on the behalf of measured results, we can conclude that the present scenario is related to the energy saving system or not. जब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद रिव्यू करेंगे हम चीज़ों का कि हाउ वेल द पॉलिसी वर्क्स, पॉलिसी हमारा कितने अच्छे से वर्क कर रहा है उस चीज़ का रिव्यू करेंगे। अगर रिव्यू में चीज़ें उस हिसाब से हमको नहीं मिलती हैं तो हम क्या भी करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसको उसका सिमुलेशन देख सकते हैं चीज़ों का। और रिव्यू करने के बाद अगर रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद जो है हम एनर्जी मैनेजमेंट को कंटिन्यूअली पीरियोडिकली बार बार उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि सिस्टम समय के हिसाब से कहीं से भी पीछे ना हो। I think this should be very clear to you. Now, these slides related to the energy management standards. The 7 major components to ISO 50001 collectively follow a plan, do, check, act approach. Actually, this topic is related to the total quality management, and the total quality management is a very vast topic in which we will study about the PDCA. PDCA means first we plan something, and after the planning we do, and after doing some task we will check, and after checking we will perform, we will act. And the whole combination would give a new topic that is a PDCA cycle. यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे कई सारे स्टेयर्स लगे हुए हैं। ये वाला स्टेयर्स जो है ब्लू वाला, ये प्लानिंग टू अचीव टारगेट्स एंड गोल्स वाला है। 1 2 3 4 चार स्टेयर्स हैं। देयर आर 4 स्टेयर्स। फर्स्ट डाउन stair are related to planning to achieve targets as well as goals. ग्रीन कलर का जो स्टेयर्स है वो related to these stairs are related to the implementation, cultural changes and tracking program success. ठीक, तो ये ब्लू कलर का स्टेयर्स है, ये प्लानिंग टू अचीव टारगेट्स एंड गोल्स है। इसमें जो पहला वाला स्टेयर्स है वो जनरल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब प्लान टू चेक एक्ट में एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे कि हम स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारा ऑर्गेनाइजेशन सारा सिस्टम चलता है। ठीक, तो जो पहला स्टेयर है वो जनरल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब एक एनर्जी मैनेजमेंट कोई सिस्टम है उसमें एनर्जी मैनेज करना है, एनर्जी सेविंग सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी जनरल रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी बातें होंगी। जैसे कि कितने वाट का कंजम्पशन है और कितने वाट का कंजम्पशन हमारे लिए सबसे एनर्जी सेविंग के लिए सफिशिएंट है। दूसरा स्टेयर जो है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट कितनी चीज़ों को समझती है, कितनी अवेयर है, वो सेकेंड स्टेयर है। And the second stair would be related to management responsibility. थर्ड वाला जो है वो एनर्जी पॉलिसी है। थर्ड स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या है, एनर्जी पॉलिसी। थर्ड वाला क्या है, एनर्जी पॉलिसी। ठीक, वही है कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में जो थर्ड वाला है वो एनर्जी पॉलिसी है, मतलब हमको कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उस पॉलिसी के तहत जब सारी चीज़ें होंगी तो हमको टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक, जब पॉलिसी बन जाएगी तो फोर्थ
फिफ्थ स्टेयर्स प्लानिंग टू अचीव टारगेट्स एंड गोल्स में जो है वो एनर्जी एक्शन प्लान है। उसमें जब आफ्टर मेकिंग द एनर्जी पॉलिसी वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी एक्शन प्लान। इसमें क्या होगा, एनर्जी एक्शन प्लान की बात होगी, और जब एनर्जी एक्शन प्लान की बात हो जाएगी फिर हम यहाँ पे ग्रीन वाले स्टेयर्स पे आएंगे, जो कि इम्प्लीमेंटेशन, कल्चरल चेंजेस और ट्रैकिंग प्रोग्राम सक्सेस को डिनोट करता है। इसमें जो फिफ्थ नंबर वाले स्टेयर्स है ये इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन का है। जब ये पॉलिसी बन गई, एनर्जी एक्शन प्लान हो गया, बन गया, प्लानिंग हो गई, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ों को और फिर वो फंक्शन करने लगेंगी चीज़ें, और उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करके हम चीज़ों को देखेंगे कि चीज़ें कंट्रोल वे में जा रही हैं कि नहीं जा रही है। देन जो ऑपरेशन के बाद हम उसके परफॉर्मेंस की एनालिसिस करेंगे, मतलब कैलकुलेशंस करेंगे कि सारा जितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो जो है विद इन द रेंज है कि नहीं है, उसमें एनर्जी सेविंग कंपेरेटिवली प्रीवियस डेटा के हिसाब से कम हो रहा है कि नहीं। तो एनर्जी सेविंग, मनी सेविंग का भी हमको ध्यान रखना है, तो इसलिए हम क्या ऑडिट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे। इस ऑडिट में सारा का सारा जितना भी कैलकुलेशन होगा, परफॉर्मेंस होगा, वो सारा कुछ चेक होगा, और जब वो ऑडिट हो जाएगा तो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, और वो ऑडिट रिपोर्ट फर्दर जाएगा मैनेजमेंट रिव्यू के पास। मैनेजमेंट रिव्यू में कई सारे हायरार्की फॉर्म में हायर अथॉरिटी टू मिडिल अथॉरिटी, मॉडरेट और अथॉरिटी कह सकते हो, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके से। तो वो सारे क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, उसके फाइनल होगा। तो आफ्टर रिव्यू जो है हमको फिर यहाँ से एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का एक रेप्लिका आएगा, जो कि यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को ग्रीन लाइट देने में असिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो 7 मेजर कंपोनेंट्स ISO 50001 के हैं। तो इस तरीके से पहला जनरल रिक्वायरमेंट्स, then management responsibility, then energy policy, after that energy action plan, then implementation and operation, then performance audit, and last one is management review। तो इस तरीके से 7 पॉइंट्स है, और ये 7 पॉइंट्स एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए हैं। और एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स उसमें मतलब ISO 50001 की हम बात कर रहे हैं। तो ISO 50001 में 7 पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। जब ये फुलफिल हो जाएगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ISO 50001 सर्टिफाइड हो पाएगा। इसमें 1 से लेके 4 तक जो है, मतलब जनरल रिक्वायरमेंट से लेके एनर्जी एक्शन प्लान, वो सारा का सारा प्लानिंग, अचीव टारगेट्स एंड गोल्स है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन से लेके मैनेजमेंट रिव्यू तक जो है वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन, कल्चरल चेंजेस एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम सक्सेस। I think this should be very clear to you. Now, see, uh, in these slides हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट स्टाफ की बात करेंगे विद स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक टूल्स। If we will talk about the O&M staff with state-of-the-art diagnostic tools, then there are some points. First point, it means it will provide operation and management staff and managers with a state-of-the-art means of troubleshooting and detecting energy wasting manufacturers, as well as obtaining immediate feedback on comfort and operational changes. तो O&M स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करेगा मैनेजर होम गोल्स के साथ। उसका मेन मोटिव क्या होगा, डिटेक्ट करेगा वो एनर्जी वेस्टिंग मेल फंक्शंस को। ठीक है, कि कहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे डिटेक्ट होगी। देन प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ डिस्क्रीट चेंजेस इन ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। फिर एक मेथड ऑफ मेजरिंग द रिजल्ट्स प्रिपेयर होगा, जो डिस्क्रीट चेंज होगा ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी में, कि आप कैसे ऑपरेट किया जाए कि चीज़ें जो है वो एनर्जी सेविंग, जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी सेविंग का जो गोल है वो अचीव हो सके। या इस तरीके से कुछ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बार ग्राफ ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, ऑरेंज वाला है, तो इसमें वही चीज़ जो है उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। ठीक है, नाउ in these slides we will talk about the energy
audits. In energy audits, we will perform a comprehensive energy audit. The first point for the energy audit, that is to identify the most immediate and cost-effective operation and management tune-up activities that will lead to efficient building operation and meet management and user needs. तो एनर्जी ऑडिट में सबसे पहला जो परफॉर्म करना है कंप्रहेंसिव एनर्जी ऑडिट, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे इमीडिएट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट क्लीनअप एक्टिविटीज़ को जो कि एक एफिशिएंट बिल्डिंग ऑपरेशन को लीड करेगा और वो मैनेजमेंट और यूजर के नीड्स को मैच भी करेगा। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम जनरेट करेंगे एक मास्टर लिस्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट्स के लिए, जो असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को किसमें, बजटिंग और डिसीजन मेकिंग में। बजट और डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करेगा वो मास्टर लिस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट्स में। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक, फिर जब बजट और ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग जो है ये हो जाएगा, तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट करेंगे करंट प्रो एंड कंडीशंस को एज अ बेस लाइन फॉर कंपेयरिंग द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिलिमिनरी एनर्जी यूज एनालिसिस है, जिसमें कैलकुलेशन करना है एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है। लेवल 1 ऑडिट जो है वो वॉक थ्रू होगा, और वॉक थ्रू लेवल 1 ऑडिट है, इसमें रफ कॉस्ट और सेविंग्स एनर्जी एफिशिएंसी मेजर होगी। लेवल 2 में क्या है, ऑडिट एनर्जी सर्वे एंड एनालिसिस है, जिसमें एंड यू विल ब्रेक डाउन डिटेल्ड एनालिसिस कॉस्ट एंड सेविंग्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एज वेल एज ऑपरेशन मैनेजमेंट चेंजेस की हम बात करेंगे। फिर लेवल 3 ऑडिट है, जो कि डिटेल सर्वे और एनालिसिस होगा, जिसमें हम डिफाइंड एनालिसिस की बात करेंगे, एडिशनल मेजरमेंट की बात करेंगे और सिमुलेशन की बात करेंगे। ठीक, तो मतलब सबसे पहले तो वॉक थ्रू ऑडिट होगा, जिसमें एक हमको रफ आइडिया मिल जाएगा। फिर लेवल 2 ऑडिट होगा, जिसमें एनर्जी सर्वे और एनालिसिस होगा, उसमें कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वो पता चल जाएगा, डिटेल्ड एनालिसिस पता चल जाएगी और कॉस्ट और सेविंग पता चल जाएगा, जिसको हमको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और यहाँ से हमको ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में चेंजेस क्या होने हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद लेवल 3 में रिफाइंड एनालिसिस करनी है हमको, एडिशनल मेजरमेंट्स करने हैं, जिससे कि एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारा फुलफिल हो, और आवरली सिमुलेशन करना है कि हमारा कहीं वो ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहा, सिस्टम फेल तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इस तरीके से कंप्रहेंसिव एनर्जी ऑडिट के 3 पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देन एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस जो होंगी वो ट्यूनअप्स होंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होंगे, शेड्यूलिंग होगा, ट्रैकिंग होगा और प्रिवेंटिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा। देन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एनर्जी मैनेजमेंट, EMS जॉब्स रिपोर्ट्स। तो एनर्जी मैनेजमेंट जॉब्स रिपोर्ट्स इस तरीके से हो सकती है। I think these things are very clear to you all. If we talk about the profile of respondents, so 85% have graduated from 4-year accredited college, 41% have a postgraduate degree from an accredited college, 37% are registered professional engineers or architects. Here the some data are over here. 83% are certified in one or more of the following categories. First is certified in energy manager in training, certified energy auditor, certified sustainable development professional, certified green building engineer, business energy professional, certified light efficiency professional, certified power quality professional, certified building commissioning professional, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। तो ये इस तरीके से इतने प्रोफाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोफाइल्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर की हम बात करते हैं, सबसे ऊपर होगा हायर अथॉरिटी। फिर एनर्जी मैनेजर इन ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो ट्रेनिंग मैनेजर्स होंगे उसकी हम बात करते हैं। फिर सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर की बात करते हैं, वो प्रोफाइलिंग है। फिर सर्टिफाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट
प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। फिर ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियर की बात करते हैं, जो इंजीनियर्स वो ग्रीन बिल्डिंग अप्रोच को क्या करते हैं, ड्रीम को पूरा करते हैं, वो इंजीनियर्स की बात करते हैं, जो कि सारे के सारे ऐसी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करेगा कि जिसमें कि एनर्जी सेविंग, मनी सेविंग के कॉन्सेप्ट हमेशा फुलफिल होते रहें। बिजनेस एनर्जी प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स को माइनिंग से लेके डिलीवरी तक सारी चार्जेस को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। सर्टिफाइड लाइटिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, AEED को बोल सकते हो, LED। तो लाइटिंग एफिशिएंसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की बात करेंगे, वहाँ पर ये भी आगे, ठीक है। तो ये सारे जो है कैटेगरी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी मैनेजर। एनर्जी मैनेजर का जो रोल होता है, एनर्जी मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनर्जी मैनेजर का काम इतना होता है कि वो कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट को, जिसमें कि हम रिडक्शन की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो we will talk about the encouraging the use of renewable as well as sustainable energy resources within an organization or community. This is very clear, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली होगा, और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, और ग्रीन वर्ड तभी वहाँ पे फीजिबल होगा, ठीक है। फिर हम डेवलप करेंगे सॉल्यूशन फॉर कार्बन मैनेजमेंट के लिए। Then we will talk about the raising the profile of energy conservation. Now, what are the responsibilities for any energy managers? एनर्जी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग यू दैट योर ड्यूटीज will vary depending on the setting you are working, but in general you will be. Developing, coordinating and implementing strategies and policies to reduce energy consumption, ये responsibility energy consumption को क्या करना, reduce करना है। Third point is all about the creation of policies and systems for buying energy and helping with contract negotiations. Policies clear होनी चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एनर्जी को परचेज करने के लिए, और then providing technical and practical advice and offering training on energy efficiency. टेक्निकल और प्रैक्टिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेनिंग और एनर्जी एफिशिएंसी को ऑफर करने के लिए। लास्ट नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स प्रमोट पर्टिकुलर स्कीम्स। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करना होगा और मटेरियल्स को डेवलप करना होगा जो कि ये स्कीम को क्या करें, प्रमोट करें। लाइसिंग एंड नेगोशिएटिंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स, building suppliers, industry council services and other relevant organizations. So we have to think about the negotiation with the contractors. The next point would be related to the responsibilities of energy manager, and that is keeping the accurate records and regularly collecting energy monitoring data. एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि हमको रेगुलरली कलेक्ट करना पड़ेगा एनर्जी मॉनिटरिंग डेटा। अगर डेटा इधर से उधर हो गया तो एनर्जी सेविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट वन इज द कैरिंग आउट द साइट इंस्पेक्शन एंड एनर्जी सर्वेस। साइट इंस्पेक्शन एनर्जी सर्वे होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द बेंचमार्किंग एनर्जी कंजम्पशन अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस। एक स्टैंडर्ड है, एक बेस्ट गाइडलाइंस है जिसको बेंचमार्क करना, उसके लिए बेंचमार्क कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप समय के साथ हो सकते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड चीज़ को साथ आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पीछे हैं या कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो वो थिंग्स, वो सारे पॉइंट्स में हमको क्या करना पड़ेगा, अपडेशंस करने पड़ेंगे, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, जिससे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। इससे भी क्या होगा, हमारा जो भी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इम्प्रूव होता रहेगा और वो अपडेटेड होगा। कीपिंग अप टू डेट विद लेजिस्लेशंस, ये सारी की सारी हमको अप टू
अपडेट समय के साथ हमको चीज़ों को करना होगा। ये सारी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एनर्जी मैनेजर की। Energy managers, what to expect? In some organization, it may be isolated job as you may be working alone. In other cases, there may be strong team support. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको एक आइसोलेटेड जॉब की जाती है और अकेले वर्क करना पड़ता है, बट इन जनरल द जॉब इज़ नॉट हाईली स्ट्रेसफुल, although this may depend on the organization and the level of responsibility. सो कभी कभार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकती है और उसको प्रोड्यूस करना होगा बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के साथ, और वो जो होगा वो काफ़ी शॉर्ट टाइम और पीरियड में बहुत सारा प्रेशर भी डाल सकता है। ड्रेस कोड्स डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Okay, the role involves both office and field work. Opportunities are available throughout the UK. Part-time work is possible as are career breaks, but you would ideally need to keep up to date with changes in legislation as well as initiatives. Now you can see the overview of energy managers. सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर का जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू रेज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज एंगेज इन एनर्जी मैनेजमेंट, to improve the practice of energy management by encouraging energy managers in a continuing program of professional development. फिर थर्ड क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है पर्सन का, एक्सेप्टेबल नॉलेज रखता है इन्हें प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट का। और लास्ट क्या होता है, to award special recognition to those energy managers who have demonstrated a high level of competence and ethical fitness for energy management. Now the certified energy management is over here. Some criteria which should be must be fulfilled. These are the extra things, but we have to focus on the audit words. I think the topic is over. Okay. So thank you.